All right, let's start with the drift velocity. ठीक है. Simplest, I think. So it is a velocity acquired by the electrons in the metal when you apply electric field. मतलब बैटरी जब कनेक्ट करते हैं वायर के साथ तब आती है ये. अच्छा. और नॉर्मल अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाओगे तो दे हैव अ थर्मल वेलोसिटी रैंडम. ओके. लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं तो दीज इलेक्ट्रॉन्स दे एक्वायर अ वेलोसिटी कंपोनेंट विच इज इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे लगता है ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो अगर आपका इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव साइड की तरफ जाने लग जाएगा. अच्छा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, but electrons move in the opposite direction, or current is in opposite direction of electrons. ठीक है. So these electrons start getting accelerated. वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ी है. Okay, so the gain in velocity due to applied field is very small and generally is lost in the next collision. अच्छा. ठीक है. So whatever you gain continuously, because you have a metal ion available, you keep on colliding with it. So आप मान लो free time जिसके लिए आप move कर रहे थे, that was this relaxation time, and you had an initial velocity u1, okay, which is the random thermal velocity, and then you got accelerated by the electric field, and this is your relaxation time. तो आपकी फाइनल वेलोसिटी यूनिफॉर्म फर्स्ट इक्वेशन से u plus 80, where u is due to the thermal part, and then an extra part got added because of your acceleration due to the electric field. So 81 is a velocity acquired by the electron under the influence of applied electric field. The time that elapsed since the last collision. So electron keeps on moving and then collides, keeps on moving then collides. So that moving time जब तक वो allowed था उसको हिलना next collision से पहले, that is the relaxation time tau1. So all the velocities, all the electrons acquire same velocity v2, v3, v4, v4, right? So they have their own initial thermal velocity and they have their common acceleration coming from the electric field. The relaxation time is separate for all electrons. Okay, so this is a general expression for the velocity acquired by any electron. nth. इनका average ले लेते हैं. That average is known as the drift velocity. So the average is v1 plus v2. ये वाला जो part है उसका, ये जो सारे u ऐड हो गए अब अलग अलग कर दिया, ये थर्मल की वजह से रैंडम होता है. राइट, दिस इज जीरो. Yes, sir. It is random, and whatever is left of you is only the part of the velocity at, which is coming from the electric field. So this part is the average of all the velocities you acquired because of the electric field, and this is the average velocity of the electrons from thermal temperature. तो ये जीरो होता है क्योंकि रैंडम डायरेक्शन होता है, ये एक सेम डायरेक्शन में होता है opposite to electric field, right? So if you take the average of all of this, so A can be written as the force being experienced by the electron. A की बात कर रहा हूं मैं, acceleration, force upon mass, and this is the average relaxation time. तो जो आपका एक्सप्रेशन निकला है तो वो 80, but now you have converted the E as the force divided by mass, Newton's second law. External force is equal to ma,
into the relaxation time. This is the average of all the relaxation time. Okay, now ठीक है what is the relationship between the current, which is a derivation that they may ask you. Derive an expression between current and drift velocity. So, मान लो you take a conductor of cross section area of some value and आपने कोई करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिया और उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A है. Okay, so this is your cross sectional area A, and the number of electron density in this is N, and A is the area of this conductor. ये area cross section का A है. Per unit volume it has these many electrons. तो इसकी लेंथ L ली है आपने, एरिया Yes. सिलेंडर है बेसिकली, तो इसका वॉल्यूम हो गया A into L pi r square H. ठीक है, this is pi r square and this is a cylinder. Now you know how many electrons are there in 1 meter cube. So in V volume you will have N times, right? So the number of electrons which are now you're considering is NaL. अच्छा ठीक है, NaL. So the total charge is available to you, which is this. ये electrons हैं तो हर electron पे E charge है. हाँ The total charge available to you in this particular small volume is NeAL. Time taken by the drifting velocity to cross conductor. तो अब ये इनके पास they have a drift velocity which is this. अभी हमने ऊपर निकाली थी. तो if they Yes, have to sir. cross this length, right, they will take time which is given by delta t, distance upon the drift velocity, which is the average velocity because of applied electric field. तो करंट क्या होता है, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा क्यू ये है हाँ the total electron charge, and the time you will take to cover the L length is this. So the rate of flow of charge comes out to be this. NeAL कट गया, NeAV. That's your current. So drift velocity, if you notice, is a function of electric field. इलेक्ट्रॉन का मास तो कांस्टेंट रहता है, Yes, sir. चार्ज भी कांस्टेंट रहता है. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज एक्चुअली ओनली डिपेंडेंट ऑन कैपिटल E. अच्छा इस एक्सप्रेशन में इफ यू जस्ट लुक एट द वेरिएबल्स, द फाइनल आंसर इज E by m. V drift is equal to E by m. So charge of electron remains same, does not change. Mass of electron never changes. So drift velocity is proportional to E, ठीक है right? Yes, And sir. the ये डेरिवेशन है उसकी. तो एक वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर ले लो, उसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो, टोटल चार्ज इट कंटेन्स. It contains this much charge and divided by the time it takes to cross this charge, which is this. ये वाला total length divided by that. So drift velocity is the one which actually comes only from electric field if you see the expression. Thermal component तो exist भी नहीं कर रहा. Yes, sir. Yeah, right. So this is your, and there is a tau also, which is the relaxation time. The time between two, average of the time it takes to okay. The second important relationship which you must know is this. ये डेरिवेशन भी बहुत कॉमन है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे. अच्छा ठीक है Let me show it to you.
So this derivation is equally important. Same, take L length, take the अच्छा ठीक volume as free electrons per unit volume be n, and then the total number of electrons in this small distance dx, ये जो छोटा सा dx नजर आ रहा है बीच में, उसके अंदर you calculate the volume of electrons, okay, dq. ठीक है So this is per unit volume. This is the volume of this small cylinder, ये छोटा cylinder जो है, और E is the charge. So total charge contained in this is this much. Current is dq by dt, so this much, NEAVD. So the current is this. अब current density is the new thing which has been introduced. Okay. I by A. Okay. So A से divide कर दो इसको, cancels the NEVD. Okay. And then VD is always written as E by M into tau. So drift velocity तो वही आगे जो होती है हमेशा की तरह. Since this, इसको current density के expression में डाल दो. So you get a current density and sigma E relationship. So this quantity which you've got, the number of electrons per unit volume, charge of the electron, mass of the electron, and this is the relaxation time average, is called as conductivity of the metal which you have considered. Material dependent होती है. So this form दिख रहा है लिखा है microscopic. So V is equal to IR is what you learnt in class 10th also. yes sir इसमें भी यूज होता है, बट क्लास 12th के अंदर जनरली द क्वेश्चन इज derive the relationship between current density and the applied electric field, which is nothing but another form of Ohm's law. ये जो लॉ है ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है कि अंदर किस तरह से जो है इलेक्ट्रॉन्स जो होता है ना, R इज इक्वल टू रो L बाई ए, दिस इज रेजिस्टिविटी, तो यहाँ पे कंडक्टिविटी आती है रिवर्स. सो एक ये डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेयर दे आस्क यू टू कैलकुलेट द रिलेशन, द ओम्स लॉ बट इन माइक्रोस्कोपिक फॉर्मेट. ये वाला नहीं करना होता डिराइव, ये डिराइव करना होता है. ठीक है सो अगेन this needs to be memorized as a derivation. समझ गया Derive Ohm's law but at microscopic level. और JE के लिए these expressions have to be memorized. ये जितने भी expression नजर आ रहे हैं, J is equal to sigma E, ये याद होना चाहिए आपको. और जो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला, वैसे तो हम इस फॉर्मूले में तो बोलते हैं रेजिस्टिविटी, वैल्यू दे देते हैं मेटल की, भाई इतनी रेजिस्टिविटी का मेटल है. बट ओम्स लॉ के अंदर देयर इज अ मेटल डिपेंडेंस, क्योंकि हर मेटल का एन अलग होता है. मास तो चेंज नहीं कर सकते आप, ई भी नहीं. सो ओनली थिंग यू कैन प्ले इज द एन. सो even the metal's characteristic originates from the what is inside the metal. The volume density of electron in every metal is different, so and hence they have separate conductivity. Microscopic picture है कि conductivity आती कहाँ से है, और conductivity is reverse of resistivity. ठीक है So this derivation of Ohm's law is very important for your CBSE, but all these expressions otherwise are important for JEE MCQs. They do ask questions on this. ठीक है आ सकता है, मतलब they can ask you. Okay. So let me give you a numerical. See, with the help of knowledge you've acquired, are you able to quickly use this? I know drift velocity, and then I also know the concept of you can see the formulas, but see whether you can identify the variables. क्या क्या available है, क्या क्या हो सकता है. ठीक है
So if you have to say what is the topic we have learnt, right? Basically, the topic is how the conduction happens in a metal. Why metal is a conductor? कैसे electron flow करते हैं under the influence of electric field. So it's a model they have made. मॉडलिंग कर लिया कि कैसे इलेक्ट्रॉन अंदर जाते होंगे. वो रैंडम वेलोसिटीज जो थर्मल वाली हैं वो सारी कैंसिल हो जाती हैं. ठीक है. So drift velocity is the concept of average velocity. Okay. It's an average of so many velocities. If you get a negative drift velocity because the electron charge is negative, okay, so what it means is कि by current की जो direction है, it is reverse of the motion of electron. I निकाला था ना finally तुमने I. हाँ. तो reverse है. Should know that also. ठीक. But I will just show you the diagram of J also. The current density is how the current density appears. क्योंकि ये J dot A जो है, it's a dot product. I is equal to J A जो अभी हमने निकाला है. हाँ. It actually is because velocity is a vector. So J is also a vector. ठीक है. Just पहले मॉडल समझ लो, वेरिएबल से दोस्ती कर लो, then let's look at it from vector product point of view. Okay.
आर यू एबल टू रिकॉग्नाइज द टर्म्स? Yes, sir. टर्म्स पहचानना जरूरी है कि any problem you're facing? No, sir. मीटर पर सेकेंड. डोंट वरी अबाउट कैलकुलेशन. देखो तुम क्या वेरिएबल को समझ पा रहे हो? मतलब पहचान सकते हो न्यूमेरिकल में कौन सी चीज क्या है आई Yes, sir. निकालने के लिए. ठीक है, हो गया. Yes, sir. ठीक है. सो लेट्स नाउ लेट मी जस्ट टेल यू, जो आपका एक्सप्रेशन है इसका, पहले तो जस्ट हैव अ लुक एट दिस एक्सप्रेशन ऑफ करंट एंड वीडी. ओके, सम इंटरेस्टिंग थिंग्स यू विल सी. सो ये करंट है और ये वीडी है, राइट? Hmm. So this actually is a, if you see VD is a vector. Velocity है ना finally तो, Huh. right? So it's a vector. So you've seen for a negative charge, for a negative charge, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में है, मतलब V ड्रिफ्ट ऐसे है और करंट ऐसे है, राइट? Yes, sir. सो बट फॉर if वैसे तो मेटल के मॉडल के अंदर you don't have positive charge, they don't contribute to current. Yes, sir. They don't. बट अगर मान लो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पॉजिटिव चार्ज होते तो वो ऐसे जा रहे होते हैं. So they would have been in the same direction. So this diagram shows you electrons, and if, which is impossible, this diagram shows you
पॉजिटिवली मूविंग चार्जेस कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स करंट। ये आगे जब हम सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा। होल्स होते हैं तो उनकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो करंट की डायरेक्शन में ही होती है, बट यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन रिवर्स डायरेक्शन ऑफ वी डी। दिस इज वन। द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, ऐसे ही मतलब जस्ट फॉर नॉलेज है ये, दिस इज फॉर योर नॉलेज, ओके, हम्म, कि द अदर थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड इज द okay, the second thing you have to know is the the vector form of the Ohm's law। जो भी Ohm's law बोला मैंने, that format is your J वाला जो एक्सप्रेशन है, E J, और जो Ohm's law का भी एक्सप्रेशन हमने लिखा है, लेट मी टेल यू द वेक्टरली भी लिख सकते हैं उसको, J को। हम्म, One format obviously is which we just mentioned, which you have written, I think. ये हमने यहाँ लिखा हुआ है। If we go to that expression, where have we written? Where is J equal to given? J की वैल्यू कहाँ निकली हुई है? L करंट की वैल्यू any J, ये देखो ये, हाँ। So just see this, that the direction of, and अभी जो मैंने velocity के बारे में बताया, see, electric field is also a vector, by the way, okay? हम्म, So do you see that J is also a vector then? So current density and E, sigma, ये जो है ये तो conductivity है, हाँ, इसका कोई लेना देना नहीं, वेक्टर, ये वेक्टर नहीं होती है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है। सो J और E भी वेक्टोरल है। एक ये पता होना चाहिए कि वेक्टर फॉर्म है। दूसरा जो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला है I का, I कैन ऑल्सो बी रिटन एज J डॉट A। ये भी पता होना चाहिए कि देयर इज अ वेक्टोरल फॉर्म। एंड लेट मी जस्ट शो यू द वेक्टोरल फॉर्म। इफ यू सी दिस पैरा, ये वाला पैरा देखो, लेट मी जस्ट ब्रिंग इट डाउन। ओके, सो यू हैव कैलकुलेटेड E इज इक्वल टू, इसने उल्टा कर लिया कंडक्टिविटी को, उस साइड ले गया है और उसको बना दिया इसने रेजिस्टिविटी। हम तो J लिख रहे हैं ना, हम्म, J इज इक्वल टू सिग्मा E। You can take it down, you can write it as J by sigma is equal to E। तो ये जो सिग्मा है इसको रो बना दिया इसने। अच्छा, I told you ना, resistivity is inverse of conductivity, हम्म, उल्टा लिख लिया इसने। ठीक है, चलो लिख लो। So you can also write E and J। So this is one another additional format of Ohm's law। अगर आपको कंडक्टिविटी की जगह रेजिस्टिविटी देते तो प्लीज यूज दिस, है सेम ही, बस ये नीचे ले गए हैं सिग्मा को, और वन बाय सिग्मा को रो लिख दिया, और तो कुछ करा नहीं है। व्हाट हैज ही डन? कुछ नहीं करा, सेम ही चीज है। नाउ अनदर फैक्ट you should know is that the above relationship E and J can also be written in the form of a vectorial form, which is this। ओके, ओके, ये जो J अभी जो हमने ऊपर देखा भी, J और E, these are two vectors। हम्म, So Ohm's law is often stated in an equivalent form of 3 point। ऐसे ये Ohm's law की मैंने बताया डेरिवेशन है सारी की सारी। So Ohm's law is also stated like this, J is equal to, ये भी Ohm's law ही है, बट ये E इक्वल टू J रो है, और जो हमने डेरिवेशन करी वो कंडक्टिविटी वाली करी, n स्क्वायर जिसके अंदर आ रहा है, राइट। सो दिस इज द माइक्रोस्कोपिक पिक्चर ऑफ Ohm's law। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो जो सारे फॉर्मूले हैं कंडक्टिविटी के, जो n स्क्वायर वाला फॉर्मूला लिखा है हमने, ये वाला, इसको उल्टा कर दोगे तो यू विल गेट 1 बाय रो। 1 बाय ओके, सिग्मा मतलब अगर लिख दोगे तो यू विल गेट अ
रेसिस्टिविटी ऑफ द मेटल, ठीक है। उल्टा लिखने पे। तो ये सारा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए पिक्चर के अंदर, व्हाट हैव यू डन। ओके, लेट मी ओके। जस्ट, जब हम बात करते हैं वेक्टर फॉर्मेट की, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आई एम गोइंग इनटू डिटेल। मैं ऊपर ऊपर से नहीं बता रहा, सिर्फ एक एक जो बात है उसके बारे में यू शुड नो, यू शुड हैव क्लैरिटी ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट। कई चीजें हैं जो तुम्हारे कोर्स में नहीं है, दे आर नॉट इन द कोर्स, सो आई एम नॉट कवरिंग देम, इट इज नॉट इवन इन जेई ओके। अबाउट ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो दे आर पार्ट ऑफ योर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक। तो उसको छोड़ देते हैं। इलेक्ट्रॉन करंट पता चल गया, द करंट, और ओके, सो ये भी पता ही है। आई विल टेल यू हाउ व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू गेट। ओके, जैसे एमसीक्यू का होता है ना शुरू में, हम्म। इफ यू, एंड दे मे नॉट आस्क यू डेरिवेशन, क्योंकि बोर्ड में रिवाज, स्कूल में पूछ लेते हैं, बोर्ड में तो अब रिवाज खत्म कर दिया गया प्रैक्टिकली, क्योंकि अप्लाइड पेपर है ज़्यादा बोर्ड का भी, अंडरस्टैंडिंग वाला। लुक एट दिस, सो ट्राई एंड आंसर दिस। अब ये कैसे करोगे बिना, अगर आपको वो कॉन्सेप्ट पूरे पता नहीं आता, फंस गए ना, देखो ध्यान से पढ़ो, you'll get stuck if you have clarity from, अगर आपने अपने हाथ से वो करा है कैलकुलेट। यस सर। करो, क्या आंसर है? यू कैन सी द, यू आर अलाउड टू सी द formulas, you go and see the formulas, no problem। ओके। देखो आराम से। सारे फॉर्मूले चेक करो, सी विच वन टू यूज। यही आपको नजर आएंगे क्वेश्चंस ऐसे, वेयर दे विल आस्क यू टू कैलकुलेट द, ये डबल हो गया, ये आधा हो गया, दैट क्लैरिटी हैज टू बी इन द माइंड, हाउ द फॉर्मूलाज आर लिंक्ड टू ईच अदर। भाई चार्ज कैन नॉट चेंज, मास कैन नॉट चेंज, डायमीटर मतलब एरिया, हम्म। और इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो आपको बढ़ाना है क्या, करंट। करंट आई और वीडी का क्या रिलेशनशिप निकाला है हमने, देखो ऊपर क्या निकाला था, आई करंट इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, व्हाट वाज द एक्सप्रेशन यू गॉट, दिस वन, ये देखो, NEAVD, यस सर। राइट। सो हाँ, ये यू यूज दिस, राइट, यही यूज करा भी है। हम्म। तो व्हाट हैव यू डन इन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो, you have NEAVD, right? So you have doubled the diameter. So area will become pi r square. हाँ। तो radius double कर दिया, तो area will become how many times? 4 times. यस सर। और drift velocity को भी double करा है। हम्म। जो NEAVD के एक्सप्रेशन में N is the metal characteristic, वो तो you electrons per यस सर। meter cube. हम्म। ANAE, can you change E, charge नहीं। of the electron? नहीं। Area or VD is what you can play with. हम्म। So you are doubling the area, sorry, you are making the area 4 times by doubling the diameter। pi r square में 2 डालोगे तो एरिया 4 pi r square आ जाएगा, यस और सर। VD को भी डबल कर रहे हो, तो 8 टाइम्स हो गया ना। हाँ। क्लियर है या नहीं है? क्लियर है। है ना। तो यू शुड ऑल्सो नो इन योर माइंड कि क्विक थिंकिंग कैसे करनी है इनके ऊपर।
ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए कि देखते यू आर एबल टू शूट। हाँ जी, मुझे पता है वो यू कांट चेंज दैट। ओके। जब आपको ये पता चल जाता है ना कि कौन से वेरिएबल से क्या होता है असर, हम्म। that is when you have clarity. If I double the, how can you double the drift velocity of the electron? But what will you do if you have to do that? What is the lever you have to change it? अब वीडी को चेंज करना है आपको, तो वीडी का एक्सप्रेशन निकाला था हमने। VDA। वीडी जो था, what was वीडी डिपेंडेंट ऑन? लुक एट दिस एक्सप्रेशन, ये वाला ऊपर, ये रहा। आई एम जस्ट रबिंग इट, ये रहा हाँ, जो यस सर। डेरिवेशन में था। हम्म। So what variable to touch to double VD? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को चेंज कर लोगे? नहीं। ई को चेंज कर सकते हो, स्मॉल। नहीं। कैपिटल ई इज द ओनली वन, राइट? यस सर। Which in effect is what? Battery. Okay, now I've told you. So this is your, let me give you a situation now so that you have more clarity on electric field also. Okay, यस सर। so this is your cross section of a circular conductor. ठीक है, सामने से ऐसे नजर आ रहा है और वैसे सिलेंडर है। हम्म। Alright. So what I've done is here it is, I have connected the positive terminal. तार को मैंने बहुत बड़ा करके दिखाया है, तार बहुत पतली होती है। हम्म। VA और this is VB, ठीक है। ठीक है। और तो द बैटरी हैज बीन अप्लाइड। बैटरी ने फाइनली करंट देना है। जो हम ई यस बोल सर। रहे हैं वो आ कहाँ से रहा है, राइट? हम्म। जो ताकत मिल रही है वो आ तो बैटरी से ही रही है, यस सर। सोर्स। लेट्स, so that you have more clarity on everything possible. ये लो, my question to you is the length of the battery is, sorry, length of the battery क्या होती है? Nothing. So this is the L. Got it? So question is, what is the applied electric field from A to B? इस क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा अगर आपको, हम्म। और आपको बोलें जी नंबर ऑफ पर यूनिट इलेक्ट्रॉन्स इज, पर यूनिट वॉल्यूम इज n, the cross sectional area is A, okay, and the number of electrons per unit volume is n. Calculate the current. तो कैसे निकालोगे? इलेक्ट्रॉन्स है, ओके। सो हम्म। क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट? कैलकुलेट, सिर्फ यही दिया हुआ है। अच्छा। लेंथ दी हुई है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, पर यूनिट वॉल्यूम चार्ज दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी मालूम है, इलेक्ट्रॉन का मास m ही ले लो अगर चाहिए तो, एरिया इतना दे रखा है। ट्राई इट आउट, थिंक हाउ विल यू कैलकुलेट नाउ द, यू हैव टू कैलकुलेट द
I hope you know your aim. Your aim is to find the drift velocity. इसमें तो एन ई ए वी डी होगी। हाँ, ड्रिफ्ट, ये तो करंट निकाल लिया ना तुमने। हम्म। तो व्हाट इज एक्सप्रेशन यू हैव टोल्ड मी? एन। ई ए वी डी। बट माय क्वेश्चन इज, वीडी इज नॉट टू बी रिटन एज वीडी। वीडी वैसे लिखना है जो ऊपर निकला हुआ है अच्छा। इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में। ओके। वही लिखा हुआ है ना। हम्म। वीडी की जो एवरेज वैल्यू निकली है वो क्या निकाली है ऊपर, जो डेरिवेशन में है, सबसे ई ऊपर। ई बाय ई एम। इस ये लिखो, ठीक। विच इज फाइन, मतलब जो तुमने बोला एन ई ए वी डी, बट वीडी को वीडी नहीं लिखना। इट इज नॉट गिवन टू यू। आपको निकालना है ई ई बाई एम इंटू टाउ। हम्म। लिख दिया। लिखो क्या लिखा। बट इलेक्ट्रिक फील्ड तो मालूम ही नहीं है। हाँ। मैंने तो पोटेंशियल डिफरेंस दिया था। अच्छा। ट्रिकी है, राइट? यस सर। देखो इसमें ट्रिक जे क्या है। पी लिखूं क्या इसको? नो नो, if you remember, electric field is given by dv by dr. यस सर। So the potential difference is vb minus va across a length of l. ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा। ये dv है, हाँ। ये dr है। ठीक है। So छुपा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड है। यस सर। Electric field therefore is coming from the potential difference across the battery. हम्म। अगर बैटरी में दे दूं 5 वोल्ट की और लेंथ दे दूं, ओनली देन यू विल डू 5 डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है। अंडरस्टूड? यस सर। अगेन, वेरी वेरी माइन्यूट डिटेल। हम्म। वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट फॉर यू। See, drift velocity is quite slow. If you see the drift velocities of electrons, 10 raised to power 5 टाइप की होती है। तो इसका मतलब जब आप स्विच ऑन करते हो हम्म। बैटरी की हेल्प से, क्योंकि बैटरी वाले हैं सारे, एसी तो पढ़ नहीं रहे हम, इट शुड टेक सम टाइम ना, इलेक्ट्रॉन फ्लो करके जाएंगे तब जाके बल्ब जलेगा। लेकिन जलता कैसे, बल्ब जलता कैसे इमीडिएटली? यस सर। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम है इलेक्ट्रॉन के अंदर तो बस बैठे रहो, फिर वेट करो हाँ। इलेक्ट्रॉन की यस सर। सर्किट में घूमने की, तब जाके शुरू होगा करंट। लेकिन ऐसे होता नहीं, इसीलिए लुक एट दिस। दिस इज द रीजन। ठीक है।
जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बहुत फास्ट ट्रेवल करता है। हम्म, ठीक है। आई एम गोइंग टू एग्जाम्पलर ओके। एंड सीइंग इफ देयर इज अ क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक। बहुत सारे बच्चों का ये टॉपिक छूट जाता है प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, छूटता है। ओके। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस। अब एग्जाम्पलर है, जब तक आपकी रूट फिजिक्स तक नहीं जाएगा। एग्जाम्पलर। हम्म, Go to derivation, see what is happening to the thermal velocity. Thermal velocity तो एवरेज जीरो हो जाता है ना. हाँ, So the only what is left then? The velocity coming from the electric field. लिक्विड। Drift. यस। है ना. करंट तो वी डी से आ रहा ना. वी थर्मल का तो हम्म, शुरू में एवरेज से ही खत्म कर दिया. यस सर। Let me see if I can tell you something which is interesting.
Okay, so if you have to compare two, so this is metal, okay, and this is another metal. Same metal है, इसमें drift velocity is vd and rest everything is same. मतलब क्योंकि सेम मेटल है तो n तो सेम ही रहेगा, which is the number of electrons per unit, volume remains unchanged. So what you have to do, इसमें जो करंट है वो डबल है, इसमें करंट जा रहा है I, इसमें जा रहा है 2I, तो इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है? इसकी दी हुई डबल होगी. कंपैरिजन वेरी सिंपल राइट, कुछ भी नहीं, मतलब पूछा ही कुछ नहीं है. Okay, tell me what is permittivity of a material if you have to define. Define one marker. देखो ये जो इलेक्ट्रिक बन रहा है ना मटेरियल के अंदर, हाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा है मटेरियल के अंदर, मेटल के अंदर, हाँ हाँ वो प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिक फील्ड को बनने नहीं देती, that opposes the creation of electric field in the material, yes sir, is called as its permittivity. So the opposition anything a material provides to creation of electric field in it is called as the permittivity. पढ़ता नहीं dielectric constant, हाँ yes sir, epsilon. हम्म So you should know ठीक है, basic definition, क्योंकि यहाँ पे देखो electric field is getting created in a metal, तो वहां से मेरे दिमाग में आया कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है वो क्या करता है, बेसिकली तो इंसुलेटर होता है वो, और मेटल तो देखो बड़े आराम से इलेक्ट्रिक फील्ड को आने देते हैं, आओ जी इलेक्ट्रिक फील्ड बनो, लेकिन इंसुलेटर जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड को बनने नहीं देते अपने अंदर. It is ठीक है, very difficult to create an electric field in an insulator. That is why it will not allow any electric current to flow. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड था तभी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई. इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं तो दम लगा के दिया है वीडी. yes sir, वीडी आया कैसे, लेकिन ये उसमें नहीं होता इंसुलेटर्स के अंदर. डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है ना इंसुलेटर. ठीक है, Okay, और कौन सा टॉपिक बोला था मेरे ख्याल से दिस, आई होप दिस इज suffices your revision on do another topic of mobility in this जो है next, अच्छा very important. ठीक है, मैं तुम्हें पढ़ने का तरीका बता देता हूँ क्या. देखो एनसीईआरटी, read every line, make your notes, okay, which is key points which you see, mark the line which you don't understand, discuss with me that line. Unless you go to the microscopic level, which is line by line, the logic will not get built inside you. Logic build करने के लिए you will again have to reread it. और जब दूसरी तीसरी रीडिंग होती है ना उसकी, you will get mature. अच्छा अब दिखने लग जाएगा आपको नया कुछ. So that happens only after first, second, third read. Third read will be very fast, but your notes will improve. मेरे को ओम्स लॉ की डेरिवेशन आती है, मुझे मोबिलिटी डेफिनेशन आती है, एक्सप्लेनेशन आती है. Then go and do numericals. But revision of theory is first thing. Don't revise questions directly. Read NCERT line by line. Line by line. If you don't understand a line in NCERT, mark it, discuss with me. अच्छा
ठीक है। ठीक है जी। आई थिंक द अदर टॉपिक, आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट पेज नाउ, आई थिंक ये भर गया। हम्म। बड़े आराम से यू कैन स्कोर फुल मार्क्स इन दिस, और ये बड़ा नॉर्मल है व्हाट यू आर अंडरगोइंग, सो यू डोंट नीड टू पैनिक एट ऑल। आराम से करते रहो, दोबारा तीसरी बार चौथी बार में इट गेट्स सो इनसाइड यू कि चलते फिरते यू कैन आंसर एवरीथिंग। ठीक है। You said Kirchhoff's voltage law, right? वोल्टेज लॉ। No worries. There is nothing to panic. Stay calm. ठीक है। हम्म। But please follow the rules of the game. अगर एनसीईआरटी पढ़ी नहीं है बैठ के लाइन हम्म। बाय लाइन और मुझसे कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा तो गलत बात है। रूल ठीक नहीं है। है, दैट इज नॉट द रूल। रूल इज भाई मुझे एनसीईआरटी के एक नुक एंड कॉर्नर आता है भाई, कोने कोने में से मुझे वर्ड के मीनिंग आते हैं, नहीं समझ में आता पूछ लो, बता दूंगा मैं। ठीक है सर। ठीक है, so that clarity which you're seeking will come from your effort. हम्म। मैं काफी डिटेल बता देता हूँ, ये सर। लेकिन आप अगर उसको जाके वापस नोट्स में कन्वर्ट कर लें, मैं आपको नोट्स भी दे दूंगा, बट मैं फिर से भी सबको सजेस्ट कर रहा हूँ प्लीज गो थ्रू लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी। नोट्स की कोई कमी नहीं है, यू डू अ गूगल यू विल गेट 1000 नोट्स ऑन द सेम टॉपिक। हम्म। देयर इज नो डर्थ ऑफ नोट्स आई थिंक इन दिस वर्ल्ड, जितने मर्जी मांग लो। Okay, so you clear about the junction law, हाँ। which is the Kirchhoff's, okay. So what you want to know is the Kirchhoff's voltage law. What is the other name given to it? The closed loop rule. ये सर। Okay. What is the first thing you do when you learn Kirchhoff's voltage law? अगर सीखना हो किसी को तो पहले क्या करते हैं सीखने से पहले? I'm going step by step. So I'm saying, okay, we are doing Kirchhoff और Kirchhoff जो भी नाम रखना है, हम्म। voltage law और closed loop law। ठीक है, ये है। ठीक है। मैं क्वेश्चन इस सबसे पहले क्या सीखते हैं इसको करने से पहले? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स लर्निंग दिस? अगर आप किसी को पढ़ा रहे हो, चलो यू आर द टीचर, व्हाट विल यू टेल देम फर्स्ट? द फर्स्ट थिंग यू टेल एनीवन व्हेन यू डू दिस लॉ इज द साइन कन्वेंशन। अच्छा। कि भाई जब करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो ड्रॉप माना जाएगा, हम्म। बैटरी जो है उसके नेगेटिव से पॉजिटिव में जाएंगे तो राइज माना जाएगा। राइज है। तो वो जो लॉजिक है वो आएगा साइन कन्वेंशन, और वो जो बेसिक लॉज हैं हाउ टू यूज प्लस एंड माइनस इन अ क्लोज्ड लूप। ठीक है। पहले तो लूप चुनना है हमें, और उसके बाद हमें उसमें साइन कन्वेंशन की हेल्प से अप्लाई करना है। नाउ लेट्स हम्म। सी द साइन कन्वेंशन। मतलब पहले आपको एक ट्रैवल डायरेक्शन डिसाइड करनी होती है ये सर। इन द सर्किट। व्हाट विल यू टेल द स्टूडेंट कि भाई तू पहले सर्किट में डायरेक्शन चूज। पहले तो तू करंट मार्क कर ले जहां तेरा मन कर रहा है ब्रांच में। हम्म। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव अ सर्किट विच इज लाइक दिस, सो लेट मी ड्रॉ अ सर्किट। पहले करंट तो मैं मार्क कर चुका हूं क्योंकि मुझे ओके मैं तो चलो मैनुअली बनाता हूं। सो आई हैव अ सर्किट, सॉरी, सो दिस इज माय सर्किट, ये मेरी बैटरी है और ये मेरी so one more battery is there, and then I have another battery, I have another resistance, so on and so forth, right? तो ये R1, R2, R3, R4, R5, E1, E2, E3, E4। तो ये मैंने करंट, मैं ऐसे दिखा रहा हूँ करंट, ठीक है, मेरी ट्रैवल डायरेक्शन नहीं है अभी ये तो सिर्फ करंट निकल रहे हैं फ्रॉम द बैटरीज। ठीक। फिर मैंने जंक्शन पे लगा लिया, ये I1 है, हम्म।
आउटसाइड, तो एक इनवर्ट लगा दिया, Yes, दिस sir. इज I1 एंड दिस इज I2, सो इनवर्ट करंट। तो जंक्शन, इस जंक्शन पे मैंने रूल लगा लिया, फिर इस जंक्शन को लिया जहाँ तीन ब्रांचेस मिल रही हैं। ठीक है, ये करंट तो पता ही है, ये भी पता Yes, sir. ही है, तो इधर भी जंक्शन रूल लगा लिया, ऑल द इनकमिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग। और ये भी जंक्शन ही है, ये भी एक जंक्शन ही है, तो ये तो पता ही है आ रहा है, ये दोनों Oh, आ रहे हैं, तो इधर ऐसे दिखा दिया। और इधर अंदर आ रहा है, ये दोनों अंदर आ रहे हैं, ये बाहर जा रहा है, तो ये भी जंक्शन है। और ठीक नाम रख लिया इनका I1 I2। तो फर्स्ट ये तो करंट जो ब्रांचेस है, हर ब्रांच में अपना अपना करंट दिखा दिया, है। राइट। सो जैसे ये जंक्शन है और एक ये जंक्शन है, इन दोनों के बीच में जो चीज़ है वो ब्रांच है। फिर ये जंक्शन है और ये जंक्शन है, ये क्या है, ब्रांच है। ये जंक्शन है और ये जंक्शन, तो ये ब्रांच है। ये जंक्शन है, ये जंक्शन है, तो ये ब्रांच है। सो ब्रांचेस के अंदर करंट दिखा दिए, बट जो क्लोज्ड लूप रूल या किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है उसमें दिस इज नॉट इनफ। मेरे को फाइनली तो जंक्शन रूल के बाद वो भी लगाना है ना, केवीएल। हाँ, तो मेरा केवीएल में रूल नंबर 1 क्या है मेरा, सबसे पहले जो फर्स्ट रूल विच आई नीड टू डू, right, is this. Let me just type it, that I will start selecting the loops. Okay, select the loops. जो a loop is what? A loop starts from a junction and ends at the same junction, पूरा घूम के। ठीक है, तो मैं अब बोलता हूँ जी, मैं तो ये वाला ले रहा हूँ, जो नाम भी रख सकते हैं हम, जंक्शंस के नाम रख लो, A B C D। तो मैं एक लूप लेना चाहता हूँ जिसका नाम है A D C A। So I'm back to junction, yes, sir. junction to junction. Then I want to take D C B D, नीचे वाला। ठीक है, I want to take A B C A, okay, राइट। और ये मेरी चॉइस है कितने मैं लूप्स लेता हूँ, लेकिन जनरली आई विल टेक द एज मैनी लूप्स जिससे मेरे जो नंबर ऑफ अननोन्स हैं उतने तो लूप आ ही जाएं, क्योंकि मुझे उतनी इक्वेशन चाहिए। हम्म, मेरे 3 अननोन है तो मुझे 3 चाहिए भाई, yes, sir. है ना, 3। और मेरे 4 अननोन है तो मैं कोशिश करूंगा 4 लूप हो। ओके, तो मैं अब सबसे पहले क्या करता हूँ, स्टेप नंबर 1, सिलेक्ट द लूप्स। हाउ डू आई सिलेक्ट द लूप्स? जंक्शन टू जंक्शन, एंड हाउ मेनी लूप्स, प्रेफरेबली सेम एज द नंबर ऑफ अननोन्स। और देयरफॉर मैं करंट कम से कम रखता हूँ, हर जगह करंट नहीं डालता, जहाँ ऐड होके आ सकता है वहां लिख लिया ना। अगर यहाँ पे मेरा करंट I1 है, ये वाला, और ये वाला मेरा करंट जो है आई सॉरी ये 1 है, ठीक है, तो ये मेरा करंट है, मान लो ये E4 है, और ये मेरा करंट है I4। हम्म, तो फिर मैं इसमें करंट का नाम नहीं रखता ना, मैं इसमें ये इनकमिंग करंट है, ये आउटगोइंग है, ये भी आउटगोइंग है, तो ये नेट आउटगोइंग लिख देता हूं मैं, I4 माइनस I1। ठीक है, ठीक इसमें है, देख लो ना, इनकमिंग आउटगोइंग करंट कितना है, I1 प्लस I4। नहीं तो मैं एक नाम रख सकता था ना यहाँ पे, I5, हम्म, पर क्यों रखूं जो मेरे को नोन है दो। yes, sir. तो वाई वाई इंक्रीज मोर वेरिएबल, I5 जरूरत नहीं, एक और हाँ, साला, अपना वाई डू यू स्पॉइल योर, अच्छा इसके अंदर जा रहा है, मान लो दिस इज योर I2। ठीक है, ठीक है, नाउ योर I1 इज कमिंग फ्रॉम हेयर, I2 इज लीविंग, एक इनकमिंग करंट हो रहा है, तो मतलब द सम शुड बी द सम ऑफ दैट करंट एंड दिस करंट, ये जो अननोन है। सो लेट मी कॉल इट I1 माइनस I2। ठीक है, तो जोड़ लो इनकमिंग करंट्स को, वही बन जाएगा अपना
सॉरी I2 माइनस I1, I1 कट जाएगा, तो द सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। हम्म। बट मैंने I3 नहीं इंट्रोड्यूस करा, यस सर। AC में नया नाम नहीं रखा, जो नोन है उसी से काम चला रहा हूं मैं। हम्म। अब यहां मेरा I2 जा रहा है, ये वाला, और यहाँ कितना है मेरा, ये देखो एंट्री जो हुई है यहाँ पे, ये वाली, ये ये मेरा I4 माइनस I1 है, तो ये मेरा I4 माइनस I1 हो गया। और यहाँ से मेरा जो करंट जा रहा था दैट इज I2 माइनस I1, तो ये आउटगोइंग है, I2 माइनस I1, इसको हटा दिया मैंने, ये I4 भी हटा दिया मैंने, ये I4 माइनस I1 ही है ये, तो मैं ये भी निकाल लूंगा, जो नोन्स हैं उसमें निकालूंगा मैं। ठीक है। I will not introduce I7, I8, I9, that is maddening। हम्म। हाँ, कम से कम नाम रखूंगा, कम से कम लूप लूंगा मैं। ठीक है। दैट शुड बी माई स्ट्रेटेजी, राइट। सो अब मैंने चुन लिया सिलेक्ट द लूप, स्टेप नंबर 1, एंड बिफोर दैट जंक्शन रूल को इंटेलिजेंटली लगाना है, या ज्यादा करंट ना इंट्रोड्यूस करें, हम्म। कोशिश करें कि जो 2-3 जगह पे ब्रांच है उसी का जोड़ तोड़ के बाकियों में आ जाए करंट। ठीक है। यही करा है मैंने इसमें भी। हाँ। ठीक है, यस सर। ऑलराइट, सो सिलेक्ट द, हाँ जी, ठीक है, ये क्लियर हो गया, सिलेक्ट द लूप। हाँ। यस सर। ओके, नाउ सेकेंड स्टेप, और लूप भी वैसे चुन रहे हो कि बस वो जो करंट जितने भी हैं अननोन्स उतने ही लूप हो, हम्म। ज्यादा नहीं। समझ गया। ओके, टू, स्टेप नंबर 2 पे आ जाते हैं। हमारा स्टेप नंबर 2 जो है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का, वो है सिलेक्ट द ट्रैवल डायरेक्शन इन ईच लूप। ठीक है, ठीक है। ये क्या है यार, मैंने क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, हम्म। मैं तो जनरली कोशिश करता हूँ जो करंट अगर पूरे लूप में सेम ही है ना, मतलब क्लॉकवाइज है, तो मैं क्लॉकवाइज ही चुन लेता हूँ, बट होता नहीं, कई बार किसी ना किसी ब्रांच में उल्टा आ जाता है। और लूप इज मेड अप ऑफ मल्टीपल ब्रांचेस, यस सर। तो मतलब मैं जब करंट देखता हूँ इस ब्रांच में, चलो इसी के साथ चल, ट्रैवल डायरेक्शन भी यही चुन लेते हैं, फिर ऐसे गया, यहाँ भी सही आ गया, करंट नीचे जा रहा है, मेरा ट्रैवल भी नीचे जा रहा है, लेकिन अब थर्ड में जब मैं घुसा तो करंट यूं आ रहा था और ट्रैवल उल्टा हो गया, चलो वो भी चलता है, बट कोशिश मेरी यही होती है कि जो मेरी ट्रैवल डायरेक्शन है, और लूप में अगर करंट भी क्लॉकवाइज ही है, सारी ब्रांचेस को देखें अगर जोड़ के, तो दोनों आइडेंटिकल रखो, नहीं हो सकता तो नहीं सही, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो आपने एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज उसको ढूंढ लिया। ठीक है, ट्रैवल डायरेक्शन भी आ गई आपकी अब। हम्म। ऑलराइट, अब आपको साइन कन्वेंशन के हिसाब से क्या करना है, डिसाइड करना है क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है, वही जो ड्रॉप वगैरह जो होता है। ओके, सो इफ यू आर मूविंग फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, माने अब आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप लिख रहा हूं मैं, नोटिस द डायरेक्शन ऑफ current and direction of travel in
ईच ब्रांच, ठीक है भाई आपकी ठीक है। ये, लेट मी जस्ट enlarge इट, इसको, सॉरी, सो ये मैं अगर डायग्राम लेता हूं अपना, लेट मी जस्ट, ओह ये क्या आ गया है, सो लेट मी जस्ट, मैं एम गोइंग बैक टू माई सर्किट, okay, so what I do now is, let me just take any of the loops. So मान लो I am taking in this A C D A, तो मैंने ये करंट की ट्रैवल डायरेक्शन ली, एंड माई ट्रैवल डायरेक्शन नाउ सपोजिंगली इज दिस, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज लिया है। ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर इन दोनों को देखता हूँ, ये और इसमें कोई करंट, मैंने नाम तो रखा ही हुआ है, शायद I1 ही रखा हुआ है, ये वाला राइट, I1 है। तो गो टू दिस ब्रांच विच इज द ब्रांच R1, यहां तो देखो रजिस्टर है नहीं। अच्छा, अगर मैं, मेरी ट्रैवल डायरेक्शन ये है, तो पहला साइन कन्वेंशन तो यही है कि बैटरी में अगर माइनस टू प्लस का जंप है तो प्लस लेना है उसको। व्हाट इज अ जंक्शन लॉ, कैन यू डिफाइन द जंक्शन लॉ, सॉरी द किरचॉफ वोल्टेज लॉ बोलता क्या है, द सम ऑफ ड्रॉप्स इज इक्वल टू सम ऑफ गेन्स, यही है ना रूल तो, यस सर। राइट, और द सम ऑफ ऑल द ईएमएफ इज जीरो, एक ही बात है, हम्म, मतलब गेन इज इक्वल टू लॉस, तो गेन माइनस लॉस इज इक्वल टू जीरो, हम्म, मैंने सारे गेन या सारे लॉस को ऐड करो तो जीरो आता है, या गेन इज इक्वल टू लॉस कह लो, एक ही बात है। हाँ। अगर मैं बात करता हूं ए बी, ए सॉरी ए सी, मैं इसका थोड़ा सा चेंज कर देता हूं सो दैट इट इज विजिबल टू अस दैट वी आर डीलिंग विद दिस ग्रीन कलर, ओके, ये वाला हमारा, जिसको ये हमारी ट्रैवल डायरेक्शन है, ये मैंने खुद चुन ली अपनी मर्जी से। और मैंने चुनी क्यों थी, एक्चुअली मुझे दिख रहा था कि वैसे तो देखो ये नीचे वाली जो ब्रांच है, ये वाली, इसके तो उल्टा जा रहा हूं मैं, हाँ। सिर्फ एक ब्रांच के साथ हूं मैं, बाकियों के तो साथ हूं भी नहीं मैं, ये भी हम्म, उल्टी है, जो ब्रांच एसी है उसमें भी करंट उल्टा ही है, तो ये किस्मत है, अगर करंट नीचे की तरफ होता है एसी में तो अच्छा रहता, लेकिन नहीं है तो ना सही। तो सबसे पहले ट्रैवल डायरेक्शन मैंने चुन ली क्लॉकवाइज, ठीक है, ठीक है। और अब मैं ट्रैवल में साइन, एक्चुअल साइन कन्वेंशन लगा रहा हूं। अच्छा, अब साइन कन्वेंशन कैसे लगानी है, लूप के अंदर देखो मैंने ट्रैवल डायरेक्शन दिखाई है अभी, और अब मैं नोट कर रहा हूं लूप के अंदर कि जहां जहां मेरा करंट है और जिस डायरेक्शन में मेरा ट्रैवल है वो कहाँ कहाँ पे आइडेंटिकल है, सिर्फ एक ही जगह नजर आ रहा है मुझे, और तो कहीं नजर भी नहीं आ रहा। ठीक है, अब साइन कन्वेंशन के हिसाब से मुझे लिखने गेन्स और ड्रॉप्स, ठीक है। अच्छा, अब मैं लिखता हूं गेन्स एंड ड्रॉप्स। सो साइन कन्वेंशन क्या बोलता है, अब मुझे लिखने हैं ड्रॉप्स इन पोटेंशियल एंड गेन्स इन पोटेंशियल इन द चोजन लूप, जो भी मैंने लूप लिया अभी, ऐसे हर एक में लगाऊंगा मैं वो, तो मैंने तो A D C A लिया था अभी, ठीक है। what is that sign convention going to say, if you are moving from higher to lower potential, higher to lower, तो ohms law is basically a drop, दो जगह पे लगाना है हमें, एक लगाना है हमें बैटरी पे, दूसरा किस पे लगाना होता है, रेजिस्टेंस पे, और तो कुछ है भी नहीं सर्किट में, है ना। जो गेन्स हैं, गेन वो किस किस में देखने हैं आपको, बैटरी पे और रजिस्टर पे,
दोनों पे देखोगे, if you if the travel direction and current are in same direction, then across a resistor, ये रेजिस्टर की बात कर रहा हूं अभी मैं, गेन और ड्रॉप की, ठीक है। ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ये मैं रेजिस्टर की बात कर रहा हूँ। वैसे तो मुझे पहले ही डिक्लेयर कर देना चाहिए था कि अभी मैं जो रूल लिख रहा हूँ वो, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। हम्म। फॉर अ रजिस्टर व्हाट इज अ कन्वेंशन, ये रूल लिख रहा हूं मैं रजिस्टर का। अगर रजिस्टर में मुझे करंट की डायरेक्शन और ट्रैवल डायरेक्शन सेम नजर आती है, देन जो ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू आई आर होता है, राइट, इट हम्म। इज गोइंग टू बी नेगेटिव। दैट मीन्स देर इज अ लॉस ऑफ पोटेंशियल, यू आर मूविंग फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है। Yeah. Okay, let's move to the next one. Again for a resistor है, लेकिन now, so it is again for a resistor, but what I notice is that my travel direction, my travel direction and my actual current direction are in reverse direction, ठीक है। अब ठीक उल्टे है। हैं, ट्रैवल ऐसे है और करंट ऐसे जा रहा है, जैसे बाकी ब्रांच में दिख भी रहा है। हम्म। ए जो हमारा सर्किट है उसमें ऐसा हो भी रहा है नीचे, सिर्फ R1 में एक जगह पे वी वर एबल टू सी दैट। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ये डिस्प्रोपोर्शनेटली इससे सर्किट इतना सा है और ये इतना बड़ा है, तो मैं एम जस्ट, तो इफ यू नोटिस व्हेन यू ट्रैवल इन दिस सर्किट, इस सर्किट में इफ यू ट्रैवल, द direction of the current is this, sorry, the travel is this is travel, एंटी क्लॉकवाइज ट्रेवल पे निकला मैं, घूमने निकला सर्किट में। सर्किट में घूमते हुए इस रजिस्टर पे अगर आओगे तो देखो यहाँ पे ट्रैवलिंग ऐसे हो रही है और करंट इधर है, उल्टे एक दूसरे के, इधर डीसी ब्रांच में, डीसी ब्रांच में गोइंग लाइक दिस, ट्रैवलिंग लाइक दिस, बट द करंट इज ऑपोजिशनल, दिख रहा है। नॉट क्लियर? क्लियर। ओके, आई वॉज वेटिंग फॉर यू टू से क्लियर है, मैं आगे बढ़ूं। वो मैं बस देख रहा था। ओके, सो रिवर्स डायरेक्शन, मेक इट, मेक आई आर से निकलता है ना ड्रॉप तो रजिस्टर में, यस सर। एस पॉजिटिव, ठीक है। ठीक है। अब रूल लगाते हैं हम फॉर अ बैटरी। हम्म। बैटरी में करंट तो है नहीं, तो करंट से तो कंपैरिजन होने नहीं वाला, ये करंट के उल्टे हो। हम्म। ट्रैवलिंग में बैटरी में क्या मिलेगा, while traveling in the in the loop, if you find you are traveling from a negative to positive terminal, it's a gain in potential। हम्म। ये करंट से कोई लेने देना नहीं है इसका। ठीक है। अगेन फॉर अ बैटरी, if you travel from
positive to negative, it's a loss in potential, माइनस साइन, हम्म, राइट? तो आपको मालूम चल गया कि प्लस और माइनस कैसे लेना है. एनी डाउट सो फार इन योर माइंड pertaining to travel and how the potential is being gained or lost across a resistor? Please feel free to ask. पूछ लो. नहीं अभी ये सही पल्ले नहीं पड़ रहा जी सर, क्या हो क्या रहा है, ऊपर से निकल रहे हैं आपने. नहीं सही ना. If the travel direction and current direction are reverse, right? Then your हाँ. travel, when you were traveling from lower to higher. So therefore you called it gain. हम्म, Current always travels from a higher potential to a lower potential. Remember that. ठीक है. Current will travel from a higher to lower, but वो current है. लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं कि मेरी ट्रैवल डायरेक्शन करंट के ऊपर है, तो मुझे पक्का मालूम है कि करंट यार उधर से आ रहा है, तो मैं लोअर साइड पे हूं. करंट की डायरेक्शन मुझसे उल्टी है ना, यस सर. तो करंट तो हायर से आ रहा है. हाँ. तो फिर मैं लोअर से हायर जा रहा हूं ना, उल्टा जा रहा हूं मैं करंट के. हाँ. यस सर. इसलिए मैं आईआर को गेन मानूंगा. ठीक है. भाई मैं देख रहा हूँ करंट मेरी तरफ आ रहा है और मैं उल्टा जा रहा हूँ करंट के, बिल्कुल. करंट आ रहा है मेरे सामने और मैं उल्टा जा रहा हूँ करंट के. वी आर अप्रोचिंग ईच अदर. तो मुझे मालूम है करंट कम्स फ्रॉम हायर टू लोअर. यस सर. That is, I am on the lower side and I'm moving towards higher side. So from traveler's perspective, there is a gain. मैं तो I am going towards the higher potential. मतलब against the tide जा रहा हूँ मैं. यस करंट सर. का पहाड़ आ रहा है, इतना स्टॉर्म आ रहा है और मैं उसके उल्टी जा रहा हूँ, तो आई एम मूविंग टुवर्ड्स द हायर पोटेंशियल साइड. ठीक है. ठीक है. अब now you have written everything, you labeled, you have applied everything, and now you have to write this in the form of a equation. हम्म, अब हमें इक्वेशन में लिखना है. अब व्हाट इज द, आई टोल्ड यू व्हाट इज द, आपने सारे वोल्टेज सोर्सेज को मार्क कर लिया था, E1 E2, उनके अक्रॉस आपने साइन कन्वेंशन से जैसे लाइक यू मूव थ्रू द loop, you traveled and you decided a travel direction. You also had the current losses and gains and all that. Now what is the rule? वो क्या Kirchhoff's का जो लॉ है, क्लोज्ड लूप, वो क्या बोलता है? द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस. एक तो ये रूल है जो बोल रहा हूं मैं, all the delta v's which you have calculated, delta v as in the delta v in battery and delta v in resistors, सबको लिखो और इक्वल टू 0 डाल दो. अच्छा. The sum of all the potential differences across each of the element, और each of the element में what is each of the element? या तो बैटरी होगी या रजिस्टर होगा. यस सर. Put it equal to 0. ठीक है. एक है कि पुट गेन्स इक्वल टू लॉसेस, बट यू विल सी वो क्या मतलब है उसका एक लाइन में. सो व्हाट यू डू इज, नाउ डू अ समेशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस बोथ resistor and battery and put it equal to 0. ओके. अच्छा, अब मैं अपने उसमें जा रहा हूँ सर्किट में, और उस लूप में जा रहा हूँ जो हम स्टडी कर रहे थे. ओके. ठीक है. ठीक है. मैं एम इन दिस लूप एंड सो लेट मी जस्ट डू व्हाट आई जस्ट टोल्ड यू. सो मुझे मालूम है कि एक जो मैं ट्रेवल कर रहा था, तो आई गॉट अ माइनस I1 R1, I1 R1 here. When I traveled from here, इसमें मुझे करंट से कोई लेना देना नहीं है when I'm going down, because I have seen a battery. So my battery is positive to negative. One more potential difference I noticed while traveling is E2. Let me move travel. Again I find resistor, and I know the travel direction and resistor are anti each other. यस सर. So इसका मतलब मैं मूविंग फ्रॉम अ लोअर टू हायर. करंट तो आ रहा है हायर से, इसका मतलब मैं Yes, sir. उल्टा जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू गेन पोटेंशियल.
सो आई एम गोइंग टू राइट दिस एज, ये मेरे ख्याल से हमने इसका नाम क्या रखा था इस वाले करंट का, ऊपर हमारा जा रहा था I1 ये वाला, हम्म, नीचे से हमारे पास I4 आ रहा था शायद, तो हमने इसका नाम रखा था I4 माइनस I1, इस वाले का, ये वाले का। हम्म, ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं आई एम गेनिंग, सो आई एम राइटिंग I4 माइनस I1 मल्टीप्लाई बाय, ये रजिस्टर नंबर कौन सा था याद है, ये तो हो गया था R1, R4 है शायद, ये जो भी है R4 लगा लो, ठीक है। कुछ भी होगा, let it be any damn thing. हम्म, So this was R1, this was I think R2, this was R3, I think this is R4, ये R3 था। तो I4 ये प्लस लिख रहा हूं मैं बिकॉज my travel direction and current direction are reversed, and then I move to the last branch of this loop which is I am saying battery, बैटरी में नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, और इसको लिख रहा हूं मैं therefore पॉजिटिव, एक Yes, sir. पोटेंशियल डिफरेंस और नोट कर लिया, हम्म, बैटरी नंबर 1 है बाय द वे। ठीक है। The sum of all the potential differences I noticed has to be put equal to 0. हाँ। सबको ऐड कर दो, ठीक है। यस सर। अगर मैं ऐसे लिख दूं इसको, E1 ये मेरे गेन है, ये मेरा गेन था, हम्म, ये गेन है ना, यस सर। ये भी गेन है, तो मैं गेन को ना लेफ्ट साइड पे लिख रहा हूं E1 प्लस I4 माइनस I1, ए जूम भाई, R1 ये गेन हो गया, हाँ। सॉरी R गेन वाला 4 था, R4, और मैं लॉसेस को राइट साइड पे ले जा रहा हूं। ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या हो गई, द गेन्स आर इक्वल टू लॉसेस, हम्म, द गेन्स आर इक्वल टू लॉसेस। यस नहीं सर। लिखना चाहते तो सबको फिर लगाओ सिग्मा, सिग्मा डेल्टा भी निकालो, सारे सारे डेल्टा भी निकालो, साइन कन्वेंशन से डेल्टा भी लिखते जाओ, उनका सम इक्वल टू 0 कर लो। ठीक है। एनी डाउट इन योर माइंड नहीं, समझ गया। that comes, please, the only way you will, देखो समझना अलग है, do some numericals now, ठीक है। step by step follow करके, once you become proficient it will become part of your logic, मुझे पता है क्या करना है, बट हाँ। पहले शुरू में स्टेप बाय स्टेप करके देखो, गेन लॉस करके, और क्या है, इसमें फंस जाते हैं लोग कैलकुलेशंस में, यू गेट लॉस्ट, इक्वेशन सॉल्व करना I1 I2 I3, so that is another challenge you will face, but most of the time the error, definitely calculation error होती है इसके अंदर, a lot of times people apply this law wrongly, if you can apply this correctly you will more or less get the right answer, कैलकुलेशन गलत होने का खतरा फिर भी रहता है इसके अंदर, कहीं ना कहीं वो I1 I2 I3 तीन इक्वेशन बन जाएंगी, अब उसको सॉल्व करना अपने आप में चैलेंज होता है थोड़ा, या तो आपको मैट्रिक्स आता हो उससे कर लो, नहीं तो फिर तीसरे वेरिएबल को हटाओ और 2 में रिड्यूस करके 2 निकाल लो, फिर तीसरा निकाल लो। ठीक है। बट प्लीज गो बैक एंड प्रैक्टिस नाउ। भाई Okay. मैंने SLA में गए लगा दिया टिक सब पे, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बट व्हाटएवर यू डू the trick is in detail. If you are not doing detailing in physics, chemistry, maths, मतलब आप लाइन बाय लाइन नहीं जा रहे हो, तो कुछ ना कुछ मिस होता रहेगा आपका, बाद में मालूम चलेगा आपको ये छूट गया था। ठीक है। और कुछ लंबा चैप्टर नहीं है ये, इफ यू नो KVL KCL एंड what we just discussed, then there are few topics, Wheatstone bridge, meter bridge, the chapter finishes, है ही कुछ नहीं उसके अंदर बेसिकली। तो we will do Wheatstone bridge next time. I will stop here. I think we have Yes, covered sir. enough ground. But please go back and practice this.
एटलीस्ट ठीक है। सॉल्व 4-5 quizzes on drift velocity, mobility, current density, electric field, doubling. Do some MCQs and circuit analysis के लिए do some uh, analyze some circuits. Actually go and calculate the values. That will add to the burden. मतलब आपको दिखेगा कि solving जो है कन्वेंशन आपने सही लगा ली, हाँ पहले गलती उसमें निकलेगी कन्वेंशन में, दूसरी गलती कैलकुलेशन कैसे करें, वो भी एक थोड़ा बर्डन सम है इसके अंदर। ठीक है। एक बार आ जाएगा सही, हम्म। परमानेंट याद हो जाएगा, फिर भूलोगे नहीं लाइफ भर। ठीक है सर। ठीक है जी, यस सर। सी यू इन द इवनिंग, मिलना आज। ठीक है, ये कंप्लीट कर लेंगे बस। चलो ठीक है, वी विल